फिश ब्लॉग विद प्रथम, ये चैनल पे आप जो देख रहे हो, चैनल को प्रमोट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ. वेरी स्मार्ट यंग बॉय, कोशिश मेहनत अच्छा है इसका, प्लीज सपोर्ट. Thank you, sir, for giving the opportunity to talk with you and share your insights and your views regarding the fish hobby. So, sir, आजकल fish hobbies में बहुत ज़्यादा chaos मचा हुआ है because of the fooding. So, before knowing that, sir, आप अपना experience बताइएगा कि आप कितने साल से इस hobby पे हो और आप कैसे develop किए? आई डोंट नो, अभी कितने साल से मैं हॉबी में हूँ बोलूंगा तो तुम मेरा उम्र का अंदाजा लगाओगे. Okay. आई एम ओनली 24, बट हॉबी में मैं कुछ 35 साल से हूँ. Okay. बीन इन द हॉबी फॉर सो लॉन्ग. Okay, sir. वी हैव सीन काइंड ऑफ अ ट्रेंड इन द हॉबी. जब हमने शुरू किया तो कुछ नहीं था. जी बिल्कुल. वी हैड टू मैनेज एवरीथिंग. फूड हमें कुछ घर में बनाना था. एवरीथिंग वी हैड टू मेक फॉर आवरसेल्व्स. Okay. सो फॉर आवर फिश वी हैड टू टेक केयर ऑफ इट आवरसेल्व्स. But as things progressed, development happened, people have imported a lot of products. Yes. I think that's what the chaos is all about. Yes, sir. And the confusion also कि क्या खरीदे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. But I think today we are also seeing a very good trend of Indian products, Yes. which is a very good thing. Yes, sir. There are few companies that is encouraging people to use the best food for the fish for their lifespan, including you, sir, which you have a Life IU food. That is amazing. I personally use that food and it's giving an amazing result for my fish. So, sir, what was your first fish that you take for yourself? The first fish I bought and kept at home was a moonlight gourami. Moonlight gourami. Yeah. Okay, I It's have. a bright whitish silver color fish. Okay. Beautiful looking fish. Okay, I have never seen. So I will definitely go through it. So, at current situation, how many fish you are having, and what is your best loving fish? I have a lot of fish. That we know, I sir. have a lot of fish, but I think my favorite fish will be the Apistogama species. That's a very favorite of mine. That is, if you take an international thing. Indian fish में मेरे को महाराजा बार बहुत पसंद. Maharaja Bass. बहुत पसंद है. One of the most beautiful looking fish in the world. Okay. Okay, it's also known as the Puntis Sayadriensis. Okay, I don't know the scientific name, but yeah. That's what it's called. Maharaja Baar. Beautiful fish. Amazing, sir. So, sir, आपके दिमाग में ये थॉट कब आया कि आपको कुछ अपने फिश हॉबीज के लिए, इंडियन के जो फिश हॉबीज है उनके लिए कुछ करना है, जिसके लिए आपने अपना कंपनी स्टार्ट किया और प्रोडक्ट डिजाइन करने स्टार्ट किए? See, a lot of people know me from I used to promote other brands, Yes. especially like ADA. Yeah. I mean, it's my effort also for bringing and having ADA in India. Yes. But see, important thing is all these foreign companies, whether Chinese, Japanese, European or any other country, they want to sell in India, but they don't want to invest in India. Yes. They don't want to do anything for the Indian hobbies. Okay. When it comes to supporting an event like this or even putting up a stall, they will not spend money. They don't want to spend. Don't want, yes. So when they are not doing anything for the Indian hobbies, why should we do for them? Yes. Okay. So that was one of the reasons. So around 2021, we kind of decided that it's enough. It's enough for the foreign company. And it's best that we start good quality Indian product that work for Indian conditions. Because I had 2-3 conversations with different brands, a Singapore brand, as a Japanese brand, and when I asked them, what is it that you're doing for the Indian hobbyists, they were categorically clear saying, we are not doing anything for the Indian subcontinent, it's more mainly for the American and Japanese markets. Okay. Then why should I promote the product? Yes. So we'll make for Indian. Make for So it. that's exactly what we're doing. All of the products that we're making here are for the Indian market. And this is the latest of the product. We're making soil in India, which is the first time ever in India. Okay, any Indian First company that making the soil in India. Otherwise, it was all made in China. Okay, sir. That's amazing to know. So, what was your first product that you made from your company for India? Fish food. That is Life IU. Amazing, sir. So, I think we started with about 2-3 varieties.
basically for regular food for fish. Then we said Blaron, goldfish. That is what we started with. But today we have about 140 varieties of food that we have for different kinds of fish. Koi fish, arwana, Blaron, cichlid. Then we have multi-variant, multi-quality foods like bug-based, worm-based. All of that we have. Okay, sir. What was your view you want to give to the Indian hobbyists for changing their food from the local Chinese food to an good food? Don't look at the cost. See, most people think that affordable, cheap खरीदने से कुछ होगा. Think about this. The fish that you have in your house is part of your house. It's part of your family. Yes. It's taking care of you. Yes. In a sense, Yeah, it's also giving you a stress buster. Yes. I mean, Why are you feeding it cheap, low quality food? sure. I mean, would your parents do that to you? No, never. And either we also don't do for our parents and children. Yes, so most people, that's what they think that, सस्ता होने से अच्छा होगा. नहीं. नहीं, कभी Okay. भी नहीं. Quality खरीदो. Okay. See, I'll give you the example. आपने 50, 60, 70 रुपए में फिश फूड करी. जी बिल्कुल. इतना खाना डाला बिकॉज फिश को चाहिए. चाहिए. Whereas आप वही अगर हमारा खाना खरीदते हैं, हाँ 200 रुपए का है, बट आपको एक चिटकी दाना है. हाँ बिल्कुल. So imagine the cost saving that you have. आदमी यहाँ पे क्वांटिटी देख के प्राइस लगाता है, ना ही क्वालिटी देख कर. ये That is the most important. और इसी वजह से आजकल फिश की जो लाइफ स्पैन है वो काफी ड्रास्टिकली 80% तक डिक्रीज हो चुकी है. लाइक फ्लावर पहले रहती थी अराउंड 10 years. सो अभी वो 2-1.5 साल मतलब एक अच्छे हॉबी से फिश खरीदने जाए. Because what is happening is, especially now that you say Flaron, 95% of the market-based food, where they say Humpy and all these names are there, plus they say it is from the farm, okay, Flaron farm in Thailand. It is all steroid-based food. Okay. Their focus is on growing the head. Okay, not for the Our focus is growing the fish, fish. making the fish healthy. It will come automatically. See भाई, अगर आप अच्छा क्वालिटी खाना दोगे, अच्छा एक्सरसाइज करोगे, तो आप हेल्दी बनोगे. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. मैं आपको सिर्फ दवाई देके हेल्दी बनाऊं? नहीं, कभी भी नहीं. जैसे कि हम अपने फैमिली मेंबर्स में उनका लुक्स, उनका हाइट वगैरह देखे बिना उनको प्यार करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्पैन कि वो हमारे साथ रहे. तो ऐसा ही आप भी चाहते हैं. You said it beautifully, बेटा. Thank you, sir. So amazing to hear that, sir, that you are doing something for the fish hobbies and you are encouraging and educating the fish hobbies in India. And sir, what is your view regarding the medicines that people are continuously using unnecessary to the fish? Unnecessary is the right word. Unnecessary. Unnecessary is the right word. See, what happens is most people think that by going to a shop and asking कि क्या हो रहा है, जी. and she says you put this medicine, that medicine. What is the use of that medicine? See, आप दवाई तभी लोगे जब आप बीमार हो या कभी कभी वो भी नहीं लेते. पहले ये समझो ना फिश को प्रॉब्लम क्या क्या है. है? ठीक है, आपका पानी गंदा है, जी बिल्कुल. आपने गंदा खाना खिलाया है, तो फिश बीमार होगा. बीमार होगा. उसके लिए एक और दवाई देना जरूरत नहीं है. सिर्फ पानी ठीक करो, खाना ठीक करो, फिश हेल्थी हो जाएगा. फिश हेल्दी हो. दवाई का जरूरत ही नहीं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो मुझे थोड़ा पता है जो कि रॉक सॉल्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. इट इज द बेस्ट. बेस्ट. अगर प्रॉपर मेंटेनेंस है तो रॉक सॉल्ट इज गोइंग टू बी परफेक्ट. और प्रॉपर अगर आजकल तो लोगों को ये भी नहीं पता सर कि मेडिसिन तभी काम करती है जब हीटर्स यूज होते हैं. हीटर्स तो उनके बारे में पता ही नहीं. हीटर एंड सॉल्ट दोनों जरूरत. दोनों. बिकॉज सॉल्ट क्रिएट्स ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस. जब मेडिसिन मिक्स होता है पानी के अंदर, ऑस्मोसिस की वजह से वो मेडिसिन अंदर जा रहा है और काम कर रहा है. बट अगेन, डू नॉट यूज मेडिकेशन अनलेस you need it. Yes. So if people who watch my videos, they've seen my Flaron fish Yes, beautiful. called Sheru Bhai. Yes. I have not used a drop of medicine till date. 2 years. And you only use salt. I only use salt. I have seen that fish. And आजकल हॉबीज के मन में ये है ना कि जो फिश सुंदर है वो मेरे लिए अच्छा है, बट वो फिश से प्यार नहीं करते, उसकी सुंदरता से प्यार करते हैं. ये सबसे खराब चीज आज के हॉबी में चल रही है सर. See, that's okay. Okay. But in a sense, it's okay. I'll tell you why. चलो मेरे को वो सुंदर दिखता है, मैं लेके आता हूँ. Not a bad thing. But उसका सुंदरता बरकरार रखने के लिए मैं क्या करूँ? मैं क्या करता हूँ. That is the more important.
important. More important. Because color enhance के लिए tablet डाल दो, ये कर दो, वो कर, that is all wrong. Okay, that is all wrong. See, I was talking to somebody in a fish market. I will not say names. Okay. And I told the shopkeeper, why are you doing this? Why are you selling this? So he told me, अगर मछली मरते नहीं है, तो धंधा कैसे होएगा? धंधा कैसे होगा? Okay, and hobbyist बिना जानकारी के मछली मार रहे हैं. मार रहे हैं हर दिन. आप मेरे कुछ व्यू में जबकि मेरे पास थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, आई एम इन द हॉबी फॉर 3 years, थोड़ा बहुत नॉलेज जो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करता हूँ ना, तो उनको लगता है नहीं शॉपकीपर बेस्ट है भाई. उन्होंने जो बोला, सस्ते में बोला, 10-20 रुपए का दवाई डाल रहा हूँ, मछली मर रहा, मैं नया ले आ रहा हूँ. वो ये नहीं समझ रहे कि वो कितना बड़ा क्रुएल्टी कर रहे हैं फिश हॉबीज के लिए. तो आजकल लोगों के जो विचार है ना, वो बहुत ही गलत तरीके में चले गए. सो बहुत खराब लगता है. बट मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी यूट्यूबर्स को भी फॉलो करते हो ना, तो उससे एजुकेशन लो, ना कि उनका खाली वीडियो में व्यूज बढ़ाने के लिए जाओ. एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. See, I'll tell you, if they are sensible YouTubers, ठीक है, हम लोग अभी we never talk about views or subscribers. सब्सक्राइबर नेवर सर. Okay, for us, my interest is to share the knowledge I have. Now, there are many YouTubers. Okay, Yes. world's expensive fish. वो फलाना डिमका. मछली मर गई, मछली को क्रुएल्टी काट के दिखा रहे काट के. हैं, फिर नई मछली. they jump through that. That is for views and like that is a very dirty thing. Dirty thing, but people are loving that. Why don't know. और मेरे पास खुद के पास सर ऑस्कर है. I am keeping it for 3 years now. It have a decent size. You know you can keep your Oscar for about 15-18 years. 15 years, yeah, minimum. So I am doing that. Initially I started with a 3-foot tank. Now I have shifted to 4-foot tank, and now I am thinking, because they are grown to around 14 inches to 15 inches, I am trying to make a 10-foot tank to See, transfer. that is what is important. See, as the fish grows, you make arrangements for it. Yes. It's okay. Yes. So that is where the hobby comes into play. Yes. So आजकल लोग ये सोच रहे हैं, मतलब आजकल तो चिकलेट वैरायटी, मॉन्स्टर वैरायटी बहुत ज्यादा फैशन में. लोग आजकल एरवाना तक ले आते हैं 2 फीट टैंक के लिए. So मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी व्यूअर्स को ये बताएं. और मैं हमेशा बताता हूँ. हाँ बिल्कुल सर, वो हम देखते ही है, क्योंकि एज अ फिश हॉबिस्ट मैं आपको बहुत एजुकेट होता हूँ, नॉलेज लेता हूँ, और उसी को अप्लाई करके अपने भी चैनल को ग्रो कर रहा हूँ और अपने को भी ग्रो कर रहा हूँ. वेरी गुड. थैंक यू सर. और मैं ये भी बताना चाहूंगा सर, एक बार मेरे वीडियो के थ्रू भी बताइएगा लोगों को कि मॉन्स्टर फिश कभी भी 2 फीट 3 फीट 4 फीट टैंक के लिए कभी बनी ही नहीं है. See, simple thing like koi fish. It is made for a pond. तकलीफ होता है जब एक्वेरियम में देखते हैं, तो इतना तकलीफ होता है मेरे को. बट आई मीन कितना समझाए, चलो आज भी समझा ही रहे. हाँ बिल्कुल सर. और सर कुछ मेडिसिन, जैसे कुछ कॉमन डिजीजेस होती है फिश में, उनका क्योर थोड़ा सा आप बता सके कि कैसे किया जा सके. Salt heater. Salt and heater, and that's it. And See, water. unless you keep the water clean. Okay. Have good bacteria in the water. Okay. 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 Good filtration. Okay. Good quality food. Okay. तो फिश बीमारी नहीं पड़ेगा. Okay. अगर पड़ भी गया because of what temperature fluctuation, कुछ उल्टा सीधा पड़ भी गया, only then you use a medication. Okay. Okay. थोड़ा फंगल इन्फेक्शन आ गया तो ब्लू मेडिसिन यूज कर लिया. Okay. बट अगेन गुड क्वालिटी ब्लू मेडिसिन. मार्केट में जो मिलता है वो ब्लू कलर पानी है. हाँ ब्लू कलर पानी. It will not work. Use good quality methylene blue. So these are things you can do, but make sure you understand your fish, what it needs. Like we do for our family members. और सर अभी हमने मेडिकेशन, फूडिंग, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में बात की. तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, वाटर साइकिलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग होती है फिश को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्वेरियम में. तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर करिए. See, I'll tell you in simple terms. Okay. हम लोग एक्वेरियम कीपिंग, फिश कीपिंग के हॉबी में नहीं है. ओके. बहुत लोग नहीं जानते, बट हम लोग बैक्टीरिया ग्रो करने के हॉबी में है. ओके. फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, बैक्टीरिया डालोगे तो फिल्ट्रेशन में बैक्टीरिया होगा, पानी साफ होगा, अमोनिया नहीं होगा, वो पानी फिश के लिए अच्छा. फिश का क्या है, कुदरती जीव है. हाँ खाना 2 टाइम पे तो बढ़ेगा ही. बढ़ेगा ही. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग लाइक पंप में नहीं करने का कि बढ़ाने के लिए. और वो भी खिलाना भी नहीं, खाली फेंक देना है. बस डाल देना है, वो खा लेगा, बढ़ेगा. इट्स अ नेचुरल थिंग. सो यू हैव टू कीप द एनवायरनमेंट सेफ फॉर द फिश. दैट इज योर जॉब. ओके. तो साइकिलिंग के लिए सर एक मॉन्स्टर टैंक का अगर साइकिलिंग के लिए हम पकड़ते हैं, तो उसके लिए क्या टाइमिंग लगता है, कितने दिन का साइकिलिंग प्रोसेस रखना चाहिए? See, if you use good quality products, जैसे अभी ये
हमारा बैक्टीरिया पैक है ओके कि अगर आप ये यूज करते हो हफ्ते में साइकिल हो जाएगा। 1 वीक स्टिल इज टेकिंग 1 वीक। और लोग ये समझते हैं कि पानी डाल के एक दिन बाद नहीं डाल सकते। सो यू आइडियली शुड सेट द वाटर पैरामीटर्स ठीक करो, साइकिलिंग करो, अच्छा फिल्ट्रेशन डालो, ठीक है, द होल वाटर गेट साइकिल, बैक्टीरिया कॉलोनाइज होता है एंड देन यू कैन इंट्रोड्यूस द फिश। ओके सर, साइकिलिंग के बारे में सीख लिया हमने। और सर फिल्ट्रेशन के बारे में आपका थोड़ा सा नॉलेज हमें शेयर। जो भी आपका पानी है वो एक फिल्टर में 4 बार होके आना चाहिए विद इन within an hour. So that's the kind of filter you should have. ओके 100 लीटर का अगर टैंक है तो 400 लीटर साइकिल In 1 hour. इन 1 आवर। ओके, और सर जैसे कि आजकल लोग स्पॉन्ज फिल्टर रखते हैं, तो स्पॉन्ज फिल्टर में तो साइकिलिंग नहीं होता, तो सर स्पॉन्ज फिल्टर का क्या काम होता है और क्यों नीडेड है? मैंने सुना है कि स्पॉन्ज फिल्टर एक See, when you have tanks with bare bottom, ओके okay, then sponge filter is fine. Sponge filter is good for breeding fish. ओके It's good for rearing fish. ओके Especially when you're doing regular water changes. Every 2 days, Like- you're removing all the kachra हाँ or daily water change. Then sponge filter is fine because there is limited amount of bacteria in it. Okay. In that situation, you use a liquid bacteria. Okay, हमारा ये liquid bacteria है. You can use this and again cycle the tank with bacteria. So water change करने के बाद bacteria डाल देने का. Okay. So again the fish stays healthy. ओके। सो सर जैसे कि आजकल रेजिंग में मैं भी हूँ और भी बहुत सारे रेजर्स है। आई एम इनटू द रेजिंग अराउंड 1 ईयर। ओके, सो जैसे कि हम क्या करते हैं, दिन में 2 या 3 बार वाटर चेंज देते हैं अराउंड 40-50%। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली मेडिसिन यूज करना तो वो हमें पकड़ेगा नहीं, मतलब हमारे पॉकेट में बचेगा नहीं कुछ अगर हम कंटिन्यू मेडिसिन यूज करते हैं। तो बट उसको कोई हार्म नहीं होता है ना, मैं ये जानना See, water quality is very good. Has to be very good. हाँ, दैट वाई वी यूज स्टोर वाटर। So you put this in the stored water. ओके वंस। Bas. Keep using that. ओके When you put fresh water to store, then you use. ओके, तो इसी क्योंकि मेरे को ना रिसेंट टाइम में कुछ कमेंट्स वगैरह आ रहे थे जो कि नेगेटिव कमेंट्स थे, क्योंकि उसमें वो बोल रहे थे कि तुम तो रेगुलर दिन में 2-3 बार पानी चेंज कर रहे हो, पानी तो साइकिल नहीं हो रहा, फिश को हार्म हो रहा है। See, your stored water can also be like a sump, यस where that is getting constantly going through a filter with bacteria. यस So when you keep adding new water to that, वो भी क्या हो रहा है, 2 दिन स्टोर हो रहा है, तो बैक्टीरिया जनरेट हो ही रहा है. जनरेटेड है ही, पहले से वो साइकिल कर दे रहा है उसको। सो आप लोग समझ सकते हो कि स्टोर वाटर का कितना वैल्यू है, और हम एज अ रेजर स्टोर वाटर ही यूज करते हैं फॉर रेजिंग फिश। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पानी लाया और ढाल दिया, तो फिश को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता हमारे लिए। तो सर, और ये सारे टॉपिक जो हमारे फिश के लिए, तो अब फिश चूजिंग के बारे में थोड़ा बताइएगा कि अगर कोई एक बेसिक सा हॉबिस्ट है जो घर में फिश रखना चाहता है, उनके पास ज्यादा स्पेस तो रहता नहीं है और वो मेंटेन भी ज्यादा नहीं कर सकते। सो एक 2 फीट का टैंक हम एक एवरेज टैंक मानते हैं, तो उसमें क्या फिश रख सकते हैं? See, understand this. See, हर एक फिश को थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए होता है. बिल्कुल। अगर आप 2 फीट रखते हैं तो देन यू कीप 1 to 2 इंच अप टू 3 इंच. सबसे हाईएस्ट साइज, मतलब उसका बिगेस्ट साइज 3 इंच होना चाहिए या 2 इंच. जो ग्रो करके भी 3 इंच पहुंचा। करेक्ट. अगर 3 इंच रखते हैं तो 4 मछली रखो. ओके 2 इंच रखते हैं तो 8 या 12 मछली रखो. Okay. 1 इंच रखते हैं तो आप 20 भी मछली रख सकते हो. हाँ, बट वो शिफ्ट करना आना चाहिए। Correct. Okay, you should have the right quantity and it should have the right environment. Okay, अगर टेट्रास वगैरह है तो प्लांटेड होना बेटर. ओके, गोल्ड फिश है तो कुछ नहीं चाहिए. लारॉन है, कुछ नहीं चाहिए. नहीं, मॉइस्चर फिश भी है तो बेयर बॉटम। So that way. ओके, थैंक यू सर। और सर, जैसे कि अभी आपने बोला प्लांटेड टैंक के बारे में, तो प्लांटेड टैंक हॉबी में बहुत ज्यादा इंथुजियास्ट है पीपल उसके लिए, बट एज अ मैं भी अभी जानता नहीं हूँ कि प्लांटेड टैंक को कैसे सेटअप किया जाए। तो थोड़ा सा इंसाइट बताइए कि अगर प्लांटेड टैंक किसी को सेटअप करना है तो कैसे स्टार्ट करे और किस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए? I think before starting a planted tank थोड़ा होमवर्क करो. ओके बहुत सारे वीडियोस है, मेरे भी वीडियोस हाँ, है, बिल्कुल। सब देखो क्या करना होता है. एंड प्लांटेड टैंक, अंडरस्टैंड द प्लांट. ओके, कैसे ग्रो होता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब रेडी रख के फिर शुरू. ओके। और सर, आजकल के बेस्ट फर्टिलाइजर, जैसे कि प्लांट्स में कुछ कुछ केमिकल इनिशियल स्टेज में लगते हैं, लाइक फर्टिलाइजर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज बताइएगा कि वो अगेन सेम थिंग, होमवर्क किया तो ये समझ में आ जाएगा व्हाट प्लांट्स आई लाइक टू ग्रो, हाँ। उसके लिए क्या लगेगा, वो इट्स ऑल अटैच टू दैट ओनली. ओके। और सर, जैसे कि प्लांटेड टैंक पे भी साइकिलिंग की जरूरत होती है क्या? यस,
aquarium cycling is compulsory. कंपल्सरी मतलब दो जाने दो So it doesn't matter, planted, marine, doesn't matter. Cycling is compulsory. ओके, दो दिल एक जान वाली कहानी। ओके, तो सर प्लांटेड टैंक में कौन सी वैरायटीज की फिशेस रखनी चाहिए? क्या मॉइस्चर वैरायटी की फिश रख सकते हैं? छोटे जितने भी टेट्रा वैरायटीज है, श्रिम्प हो गए, गप्पीज हो गए और टेट्रा वैरायटीज, यही सब हमें रखनी चाहिए। और सर ईल वगैरह रखी जा सकती है क्या? anything that will dig the soil नहीं रख सकते. नहीं रख सकते, लाइक मॉइस्चर फिश वो नहीं रख सकते। थैंक यू सर। और सर अपना कुछ थोड़ा सा व्यूज और या थोड़ा ज्ञान दीजिएगा व्यूअर्स को, क्योंकि हमने बहुत सारे नॉलेज शेयर की, उसको कैसे अप्लाई करें और आपका क्या व्यू है इन फर्दर फ्यूचर फॉर द हॉबी? See, दूसरों का व्यू का गोली मार. ओके, आप जब समझोगे कि कुदरती क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन नेचर, आपका खुद का एक व्यू पॉइंट बनेगा. फॉलो दैट, इट विल ऑलवेज बी राइट, बट योर सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग शुड बी द नेचर. बिकॉज मैं अपना व्यू पॉइंट कुछ बोलता हूँ, मेरे लिए करेक्ट है, डेफिनेटली आपके लिए करेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज मैं अपना बॉम्बे रिलेटेड व्यू पॉइंट, मेरा एक्सपीरियंस उधर का है, मैं बता रहा हूँ. टेम्परेचर है कलकत्ता में अलग होगा, ओके, कश्मीर में अलग होगा, कन्याकुमारी में अलग होगा. बिल्कुल हिली एरियाज अलग। So you have to make your own, get understanding from everywhere, figure out your issue and solve it. Thank you, sir. I love to share a platform with you and nothing to say. Amazing, sir. Thank you. No worries. So, thank you very much. मैं usually अपने चैनल में साइन ऑफ करता हूँ. Thank you, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. फिश ब्लॉग विद प्रथम, ये चैनल पे आप जो देख रहे हो, चैनल को प्रमोट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ. वेरी स्मार्ट यंग बॉय, कोशिश मेहनत अच्छा है इसका, प्लीज सपोर्ट करो. Thank you, sir. और thank you for the encouragement. Tata, bye bye.